Good afternoon, students. Today we will start the achievements of plant breeding, and already we have completed the history of plant breeding. So now we will start today the achievements of plant breeding. After that, we will discuss about the uh, mode of reproduction and the heterosis. Okay, the achievements of plant breeding are following. First is the production of dwarf and semi-dwarf varieties. Okay. तो बच्चों इसमें क्या है, जो सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ जो जीन जो आए हैं वो नॉरिन 10 और डी जी ओ वो जीन, ये दो सोर्स हैं। इन दोनों सोर्स से हमने डॉर्फिंग जीन ली है। ओके, तो इन नॉरिन 10 ये सोर्स है। ओके, और नॉरिन 10 से ही हमने नॉरिन 10 जीन लिया है। ओके, नॉर्मल बॉल लोग ने ये नॉरिन 10 जीन नॉरिन 10 से लेके वीट के अंदर इंट्रोगेस करवाया, जिससे क्या हुआ, वीट का जो हाइट जो मतलब कि हाई था वो उसको वो सेमी डॉर्फ बन गई वो वैरायटी, जिससे वो लॉजिंग रेजिस्टेंस बन गई। और उसके बाद में मैक्सिको से इंडिया के अंदर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हुआ। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मीनिंग ये है कि उन वैरायटी को लाके उनके अंदर समथिंग चेंज करते हैं उनकी जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स में चेंज होने से क्या हो गया, वो वैरायटी हमारे एरिया के लिए यानी कि इंडियन ग्रोइंग कंडीशन के अंदर दे अडेप्टेड एंड वी कैन ग्रो। ओके, द एग्जांपल फॉर दिस द वैरायटी आर कल्याण सोना एंड सोनालिका। ओके, next gene is DZO gene, which is introgress in the rice variety, and they developed the some semi-dwarf variety name are TN1. It is developed in Taiwan, and second is IR8, which is developed in ERI, Philippines. ERI means International Rice Research Institute. Okay, these both variety are developed in the year 1966. Okay, the next is novelization of sugarcane. This is very great achievement. Okay, which is done by the Dr. C.A. Barber. Okay, Dr. C.A. Barber is a scientist in a sugarcane breeding institute, which is situated at the Coimbatore, Tamil Nadu. Okay, what happened in this novelization of sugarcane? There is a one wild variety. Name of wild variety is Saccharum spontaneum. Okay, this wild variety is having the high level of resistance against the different biotic and abiotic stresses. Okay, but our North Indian cane, that is Saccharum officinarum. Okay, it does not have resistance towards the biotic stress, but it's having good quality of cane sugar. So what he did, by the backcrossing method, he introgressed the gene from the spontaneum to Saccharum officinarum. Okay, then finally he developed a different variety, namely CO216, like that. So these are variety developed by the novelization process of sugar cane. So finally we can conclude that novelization of sugar canes means some wild gene, desirable wild gene, transferred from the wild species to our cultivated variety by the process of backcross. This is the novelization of sugarcane. Next achievements which is done by the plant breeding methods. मतलब इसमें बहुत सारे हाइब्रिड्स और सिंथेटिक वैरायटी डेवलप हुआ है, और कुछ एग्जांपल यहाँ है, जैसे मेज के अंदर गंगा सीरीज ऑफ वैरायटी, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 4, लाइक दैट सीरीज ऑफ वैरायटीज आर डेवलप्ड. ओके, आल्सो सम क्वालिटी प्रोटीन मेज टाइप ऑफ वैरायटी भी डेवलप हुई है, QPM1, QPM2, QPM3. उसके बाद में उसको भी और भी इम्प्रूव किया, जिसका नाम HQPM 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट. सोरगम के अंदर जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो CHH फर्स्ट है, यहाँ देख रहे हो. सेकंड जो है BCSH फर्स्ट, ये सोरगम का सबसे फर्स्ट हाइब्रिड है. उसके बाद में उसका बहुत सारा सीरीज डेवलप हो गया, CSH 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ओके, बाजरा के अंदर HB1 है. ओके,
हाइब्रिड 12-1 ये फर्स्ट हाइब्रिड है। उसके बाद में शारदा, सबूरी, PHB 10, ICTP 8203 ये वैराइटीज़ डेवलप्ड हुई है। एंड नेक्स्ट इज़ कॉटन, और जो कॉटन का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वह H4 है। ओके, H4 वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या है? दो स्पीसीज में क्रॉस करवाना विच इज़ हैविंग द सेम जीनस। ओके, और दूसरा है वारालक्ष्मी। ये वारालक्ष्मी जो ये भी फर्स्ट हाइब्रिड है, लेकिन ये इंट्रा स्पेसिफिक है, मीन्स सेम स्पीसीज बट हैविंग सेम स्पीसीज बट डिफरेंट वेराइटी। एक ही स्पीसीज है लेकिन डिफरेंट वेराइटी की है, उनके बीच में क्रॉस करने से वारालक्ष्मी बना। ठीक है, उसके बाद में जयलक्ष्मी भी बना कॉटन में। तो ये इसका डेवलपमेंट है विच इज़ गॉट थ्रू डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स बाय द प्लांट ब्रीडर। और सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो प्लांट ब्रीडर हुए हैं उनके नाम है MS स्वामीनाथन है अपने, ओके, CT पटेल हो गया, है ना, GS खुश है ना, CD में तो नहीं, पैथोलॉजिस्ट है वो। ठीक है, ये हमारे प्लांट ब्रीडर है बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामीनाथन जिसने वीट के अंदर जो इंडियन ग्रीन रेगुलेशन लाया, स्वामीनाथन हो गया, CT पटेल हो गया जो कॉटन ब्रीडर है ना, इस टाइम रामधन सिंह वीट ब्रीडर है। ठीक है, ये वो है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस मीन्स कि हमें अभी क्या करना चाहिए, व्हाट थिंग्स विच इज़ द रिमेन टू डू बाय द प्लांट ब्रीडिंग। ओके ना, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट लिख रखा कि जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ायरेबल जीन। मीन्स हमें उन डिज़ायरेबल जो जीन है उस पॉपुलेशन के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसे एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसी पॉपुलेशन डिराइव करनी है जिसके अंदर सभी जीन अवेलेबल हो। ओके ना, ऐसी पॉपुलेशन डिराइव करना जिसके अंदर सारे डिज़ायरेबल जीन अवेलेबल हो, जो कि कर रहे हैं वीट और राइस के अंदर। और जो सेकंड है इंटेंसिव ब्रीडिंग ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड एज इट डन इन सीरियल एनॉन। मतलब इंटेंसिव ब्रीडिंग यानी कि जो नॉर्मल सिलेक्शन मेथड है उससे भी हाई, मतलब पॉपुलेशन साइज को बढ़ा दो, नंबर ऑफ क्रॉसिंग को बढ़ा दो, और जो मतलब कि जो आपके मोलिकुलर ब्रीडिंग को भी इन्वॉल्व करो, इस टाइप से, है ना। मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा कि सॉइल मतलब हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा फिजियोलॉजिस्ट के साथ में, एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन करना है और भी ज़्यादा है, जिससे क्रॉप मैनेजमेंट प्रॉपर और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। हमें हेरिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द हेरिटेबिलिटी मेथड, है ना। मतलब मैनिपुलेशन कर सकते, ब्रीडर क्या मैनिपुलेट कर सकता है हेरिटेबिलिटी को, जिससे क्या वी कैन इंक्रीज द हेरिटेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। हेरिटेबिलिटी मीन्स जेनेटिक कंपोनेंट को हमें बढ़ाना है कुल मिला के, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल कंपोनेंट भी होता है जिससे उसका यील्ड कम हो जाता है। ये हम डिटेल में एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे वहाँ पे, हेरिटेबिलिटी। और नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ ऑयल सीड। क्वालिटी मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द डिजायरेबल अमीनो एसिड कंटेंट इन दी पल्सेड एंड ऑयल सीड, है ना। डिजायरेबल अमीनो मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, उनको बढ़ाना, ये हमें ज़रूरत है फ्यूचर के अंदर। वी हैव टू डू दिस थिंग्स। और ट्रांसजेनिक प्लांट का डेवलपमेंट है, GMO का भी रिक्वायरमेंट है ना। मतलब कि जैसे हो गया एडिबल वैक्सीन चल रहा है आजकल, तो एडिबल वैक्सीन के अंदर क्या हो रहा है, हमें वो ऐसी वैक्सीन को तैयार करना है ना, जिससे हम जैसे हम फ्रूट को खाएं हम इम्यूनाइज्ड हो जाएं। देखिए जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो जैसे हम पोटैटो खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, तो क्या होगा, खाते ही वो कोरोना की एक अंदर से अपना एंटीबॉडी शरीर में बनने लग जाएगा। तो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट को हमें डेवलप करना है ऐसे थ्रू टू डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ओके, और ऐसे वेराइटीज़ को डेवलप करना है जो हम थ्रेशिंग करें ना, मैकेनिकल, जब हम थ्रेशिंग करते हैं मतलब सीड को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉट, तो वो वहाँ पे इसका जो लॉस है वो कम से कम हो। वी डेवलप सच टाइप ऑफ वेराइटीज़। ये हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को इन्वॉल्वमेंट उसका होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल जीन फ्रिक्वेंसी उनको बढ़ाना है, हेरिटेबिलिटी को बढ़ाना है, एमिनो एसिड जो कंटेंट को बढ़ाना है, फैटी एसिड कंटेंट को बढ़ाना है ना। तो ये दिस टाइप ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन द प्लांट ब्रीडिंग। और टूल्स क्या है प्लांट ब्रीडिंग के, टूल्स यानी कि डिफरेंट क्या मेथड्स है जिससे हम मतलब ग्रेन यील्ड को
बढ़ा सकते हैं बाय द मॉडिफाइंग द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ क्रॉप। तो ये मेथड दे रहे हैं म्यूटेशन के थ्रू, पॉलीप्लोइडी के थ्रू, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, इन विट्रो टेक्निक्स एंड थ्रू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो म्यूटेशन का मतलब क्या, मतलब कि सडन उसमें चेंज होना, मतलब उसके डीएनए के अंदर चेंज ला देना, कोई केमिकल के थ्रू या कोई रेडिएशन के थ्रू उसमें चेंज ला देंगे। तो वो क्या होगा, उसकी जो मतलब कि अनडिजायरेबल जीन है वो डिजायरेबल में चेंज हो जाएगा, है ना। ये होता है म्यूटेशन। मतलब ब्रीडिंग इज डन बाय द म्यूटेजन, और म्यूटेजन आर EMS, MMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, और MMS मीन्स मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। और इरेडिएशन आर, रेडिएशन कौन सी काम मिलेंगे, एक्सरे, गामा रेज, दिस टाइप। और पॉलीप्लोइडी का मतलब क्या है, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ जीनोम इन द क्रॉप प्लांट, मतलब कि जैसे 2x होता है उसको 3x कर देना, 4x कर देना, 5x कर देना। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि टिश्यू कल्चर के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। इन विट्रो कल्चर यानी कि केयरलेस कल्चर कर दें, एंथर कल्चर, ओवेरी कल्चर कर दें, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि वी ट्रांसफर दी फॉरेन DNA इनटू दी होस्ट सेल बाय दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के थ्रू कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, है ना। आजकल CRISPR-Cas9 चल रहा है, तो ये टेक्निक्स है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसको फॉरेन DNA को ट्रांसफ़र करना, लेकिन CRISPR-Cas के अंदर DNA इंट्रोग्रेस नहीं करवाते, उसके अंदर म्यूटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर द टूल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज ये और डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एपोमिक्सिस। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द वे ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन मतलब कि प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, ओके ना। मतलब कैसे नया प्रोजनी एक बन रहा है, ओके। तो अब ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। सेक्सुअल मीन से हो सकता है या सेक्सुअल मीन से हो सकता है। सेक्सुअल मीन से मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट जो बनते हैं, मेल गैमेट बनेगा इसके अंदर, एंथर के अंदर, फीमेल गैमेट बनेगा इसमें आपके पिस्टिल के अंदर। तो पिस्टिल से फीमेल गैमेट और एंथर से मेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं और फिर एक जाइगोट बनेगा, फिर वो डेवलप हो गए एम्ब्रियो बनाएगा, देन एम्ब्रियो सेक भी बनेगा दौरान, और फिर कम्प्लीटली एक सीड बनेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होता ही है। मियोसिस क्यों, मतलब मियोसिस, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड क्या होते हैं, यहाँ पे प्लांट के अंदर गैमेट होंगे, मेल और फीमेल गैमेट, है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फाइनली एक वी विल गेट सीड। और फिर सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे डायग्राम से दिखा रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब देयर इज़ कोई फ्यूजन नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट में, है ना। तो विदाउट फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट बन जाते हैं। लेकिन म्यूटेशन यदि कुछ हो गया है तो वहाँ पे फ्यूजन हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और इसके कुछ वेज दे रखे हैं कि यहाँ पे डायग्राम में देखो, जैसे बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस इज न्यू ऑफस्प्रिंग, ओके। इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, 2 टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज ओपोमिक्सिस, ठीक है। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मतलब वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, उस पार्ट को हम काम में लेते हैं टू जनरेट न्यू ऑफस्प्रिंग। तो अब नेचुरल के अंदर है राइजोम है ना, ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ट्यूबर भी एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। कॉर्म भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। बल्ब जो तुम जानते हो, बल्ब होता है ओनियन के अंदर, कॉर्म कोलोकेशिया के अंदर है, ट्यूबर पोटैटो में होता है, राइजोम टर्मरिक या लौंग के अंदर। ये मॉडिफाइड टाइप है। आगे इसके डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। दूसरा, स्टेम कटिंग्स काम में ले सकते हैं,
मतलब नया प्रोजनी बनाना है तो शुगर कैन, ग्रेप्स और रोज़ के अंदर हम स्टेम जो होता है उसका स्टेम को काट लेते हैं और डायरेक्ट वो ग्रो करता है। रूट कटिंग भी लेते हैं काम में, जैसे सिट्रस की जो रूट्स है उसको काट लो या स्वीट पोटैटो को काट लो, डायरेक्ट उसको हम ग्रो कर सकते हैं। या लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जो गुट्टी है, ये सारे वेजिटेटिव मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है और है ना, और नेचुरल वे है ये सारे सारे, है ना। जो ये मतलब आर्टिफिशियल के अंदर, नेचुरल तो ये ऊपर वाला हो गया, ट्यूबर, कॉम, राइजोम, लेकिन आर्टिफिशियल में ना स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, ये दीज आर द आर्टिफिशियल मीन। और फिर नेक्स्ट क्या है, इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप में क्या है, राइजोम। देखो राइजोम क्या हो रहा है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके, जिससे क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है ना। और जो स्टॉलन और रनर्स क्या होते हैं, एरियल जो पार्ट होता है स्टेम का, वहीं से मॉडिफिकेशन होता है, और वो मॉडिफाइड पार्ट को हम यूज़ में ले सकते हैं टू जनरेट द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अदर नेक्स्ट क्या है, जैसे सकर्स हैं, ये भी एक तरह की बर्ड्स होती हैं, है ना, जैसे अबाउ द ग्राउंड लगते हैं, जैसे ग्राउंड होता है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर एक होते हैं जो, है ना, बनाना वगैरह में सकर्स लगते हैं, डायरेक्ट उन जो जस्ट अबाउ द ग्राउंड जो सकर्स हैं उनको जस्ट उनको वहाँ से काट लो और उगा लो उनको डायरेक्ट, है ना। ये रोज़ फैमिली वगैरह में सकर्स होते हैं, बनाना में भी सकर्स होते हैं, है ना। और बल्ब किस में होता है, ओनियन के अंदर, जो छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं बल्ब, है ना। और जैसे और ये कॉर्म ग्लेडियोलस में होती है, ये भी एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम ही है। अब समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब होता क्या, पहले ही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ मियोसिस in which two gametes are fused after the fertilization and finally restore the complete diploid number। मतलब कि मेल फीमेल क्या होते हैं, मेल गेमिट फीमेल गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ओके ना। गेमिट जहाँ हो गया यानी हैप्लॉइड है, जब व्हेन हैप्लॉइड गेमिट of male and female parent, and after that they will fuse and they will produce a diploid, okay ना। diploid number produce होगा फाइनल प्रोडक्ट्स का after the fertilization of male and female gametes। अब यहाँ देखो कि कुछ टर्म्स है, जैसे मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट जो होता है इसको बोलते हैं अपने जो मेल गैमेटोफाइट है उसको, और मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है ना। एम्ब्रियो सेक हो गया वो मेगा गैमेटोफाइट हो गया, है ना। और जैसे ये हो गया तुम्हारा क्या, पोलन ग्रेन हो गया, वो माइक्रो गैमेटोफाइट है, स्पर्म सेल हो गया, है ना। तो ये चीज़ है। और जो जहाँ पे भी यदि मियोसिस हो रहा है उस मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं हमेशा, और नॉन रिडक्शनल डिवीज़न माइटोसिस होता है, सीधी सी बात। रिडक्शनल यानी कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और नॉन रिडक्शनल मीन्स देयर इज अ मेंटेन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे 2n क्रोमोसोम हो गया, 12 हो गया, तो 12 ही क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे माइटोसिस से, लेकिन व्हेन मियोसिस में क्या होगा, 12 से 6 आ जाएगा। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल, यूनी यानी एक, है ना, एक यदि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा। मैच के अंदर एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। मेल ऊपर, मेल मतलब फीमेल नीचे होता है, मेल ऊपर होता है, सिल्क बोलते हैं फीमेल को, है ना। मेज के अंदर पपाया में भी ऐसे है, मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। कुकुम्बर्स फैमिली में भी ऐसा ही होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, जैसे मस्टर्ड और पिटूनिया रोज़ है ना। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे वीट एंड राइस में भी बाइसेक्सुअल ही है वो, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, दोनों ही एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है, इसको वो बोलते हैं। और मेल गेमिट कहाँ बनेंगे, एंथर में बनेंगे। फीमेल गेमिट कहाँ बनेगा, वो ओवेरी में बनते हैं। ओवेरी में भी ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिट बनते हैं और उसको एक भी बोल सकते हैं,
और जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट का तो क्या होगा, वो जाइगोट बना लेगा अल्टीमेटली। और यहाँ पे एक ये मैंने एक डायग्राम दे रखा है, यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर देयर इज अ इन लेफ्ट साइड देयर इज अ फ्लावर एंड राइट हैंड साइड देयर इज अ मेल एंड फीमेल गैमीट, ओके ना, मेल एंड फीमेल पार्ट सॉरी। तो इन जो फ्लावर दे रखा है, यहाँ फ्लावर में देखो इसके अंदर एक तो ये हो गया नीचे कार्पल, है ना, जिस फीमेल ऑर्गन है ये कार्पल, और मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमन्स हैं, ठीक है ना। और स्टेमन के फिर 3 पार्ट हो गए, एंथर है, स्टाइल, एंथर है, फिलामेंट है ना, ठीक है, और नीचे पेडिसिल भी होता है इसके। और फिर जो फीमेल जो स्ट्रक्चर है जिसको कार्पल बोलते हैं, कार्पल के 3 पार्ट हो गया, सबसे ऊपर स्टिग्मा है, उसके नीचे ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है, और नीचे ओवेरी है, और उस ओवेरी के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें ओवल होते हैं, है ना, इस ओवल में ही एक बनता है। और मेल पार्ट जो येलो कलर का दिख रहा है, इस येलो कलर के एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। जब मेल फीमेल कैलिक्स कोरोला जब चारों ही वर्ड किसी फ्लावर में होंगे ना तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। यदि एक भी गायब हो गया, एक भी पार्ट, यानी सपोज करो उसमें एंथर नहीं है, ओनली कैलिक्स कोरोला और गाइनोशियम ही है या कार्पल ही है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा लाइफ साइकिल देख लो, इसमें क्या है लाइफ साइकिल, कैसे मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर कैसे स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट चेंज होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मियोसिस हुआ, मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल है जहाँ एंथर है, और फीमेल पार्ट जो वहाँ पे ओवेरी है, ओवेरी में भी ओव्यूल है, वहाँ पे मियोसिस हुआ। मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, स्पोर प्रोडक्शन होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन बनेगा और एक सेल बनेगा, है ना। अब एक सेल और पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम यहाँ, गैमेटोफाइट बोलते हैं, है ना, गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब ये एक जो गैमेटोफाइट है, मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट कौन सा होगा, एक सेल को बोलते हैं। यहाँ देखिए मतलब एक सेल स्पर्म दिखा रखा है 2 एरोज के बाद में, तो एक सेल को बोलते हैं मेगा गैमेटोफाइट और स्पर्म को बोलते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट। तो ये मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट बोथ आर फ्यूज्ड आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज कैन आल्सो कॉल्ड एज सिनगेमी, ओके ना, है ना। तो फिर क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के बनने से क्या होगा, डिप्लॉयड हो गया। अब डिप्लॉयड के बाद में क्या होगा, माइटोसिस होगा, और मतलब कि कंटिन्यूस क्रोमोसोम का डबलिंग होता जाएगा, मतलब 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 64, इस टाइप से कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है सेल्स का, ठीक है। उन कंटिन्यूस रेप्लिकेशन से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उस एम्ब्रियो फाइनली जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट होगा हमेशा डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट होगा हमेशा हैप्लॉयड होगा। फिर स्पोरोफाइट से अगेन मियोसिस होगा, एक सेल बनेगा, स्पर्म बनेगा, अगेन फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, फिर अगेन गैमेटोफाइट। तो ये साइकिल है वो चलती रहती है, इसको इसलिए बोलते हैं साइकिल ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि स्पोरोफाइट का क्या होता है, जीनोमिक लेवल क्या है, तो डिप्लॉयड है हमेशा। गैमेटोफाइट का क्या होगा, हमेशा हैप्लॉयड होता है जीनोमिक लेवल, दैट इज थिंग ओनली। ये पहले ही तुम्हारे को बता दिया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो पिस्टिल होगा, हाँ, या एंथर होगा, है ना, एक ही होगा, जैसे मेज है या पपाया है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होगा, दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा, जैसे राइस और वीट होता है ना। और प्लस कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसमें चारों ही वर्ड हो, कैलिक्स, कोरोला, एंथर और पिस्टिल, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सेपल है, यानी सबसे नीचे पेडिसिल है, फिर उसके ऊपर सेपल है, मतलब सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, है ना, और जो पेटल है उनके ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला वर्ड होता है कैलिक्स, उसके बाद में होता है कोरोला, है ना। फिर उस फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल और एंथर होता है, पिस्टिल क्या फीमेल पार्ट है,
एंथर क्या है, मेल पार्ट है, तो यहाँ पे ये दिख जाता है सारा का सारा। लेकिन इनपरफेक्ट फ्लावर में क्या होगा, या तो पिस्टिल होगा या एंथर होगा। इस डायग्राम के अंदर केवल पिस्टिलेट टाइप को फ्लावर बता रखा। और पिस्टिलेट टाइप के जो फ्लावर होता है ना, उसका एग्जांपल है केस्टर, रिसिनस क्यूमिनस, है ना। उस केस्टर के अंदर पिस्टिलेट टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। अपन फिर ये नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि अभी ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और फिर जो मोड ऑफ मतलब कि उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो मतलब सेक्सुअल मीन कंप्लीट हो गया, मतलब एसेक्सुअल मीन के अंदर वेजिटेटिव और दूसरा एपोमिक्सिस था। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपोमिक्सिस, ठीक है ना। अभी इस एपोमिक्सिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ए सीड फ्रॉम द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और जो एपोमिक्सिस टर्म गिवन बाय दी हैंस विंकलर, ओके ना, विंकलर ने ये टर्म दिया था। इसमें क्या होता है, सीड बनता है एम्ब्रियो से, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। विदाउट, यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये जो सेकेंड लाइन पढ़ो, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, मीन्स अवे फ्रॉम द मिक्सिंग। व्हाट इज द मिक्सिंग? Mixing of male and female gametes. There is a no mixing of male and female gamete. Male female क्या है, हाँ एंथर, मतलब एंथर से पॉलन गेन बनेगा, पॉलन गेन उधर एक सेल, तो पॉलन गेन एक सेल का कोई मिक्सिंग नहीं होता है, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओके, तो इसके दो टाइप्स हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर क्या होगा, जो मदर प्लांट से जो प्रोजनी बनेगा वो हमेशा सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा। मतलब कि 2n क्रोमोसोम 14 है, तो उसकी जो सीड से जो प्रोजनी बनेगा उसका भी 14 होगा। मतलब कि डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड चलेगा, टेट्राप्लॉइड है तो टेट्राप्लॉइड ही चलेगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ मदर प्लांट, because the meiosis was absent, ठीक है, एब्सेंट होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस में। लेकिन नॉन रिकरेंट सिलेक्शन में समटाइम meiosis appeared in some generation, so मतलब sometime gametic means chromosome remain same in for the some generation, but after some generation the chromosome number will be changed, है ना। तो ये डिफरेंस है। कांस्टेंट क्रोमोसोम रिकरेंट में रहेगा, और कांस्टेंट एब्सेंट ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम वो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में आएगा। तो दैट इज़ द थिंग, आई थिंक इट इज़ क्लियर्ड। और इसके एपोमिक्सिस में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इसी के टाइप है, एक्चुअली एपोमिक्सिस में अंडर में आते हैं। जैसे डिप्लोस्पोरी है, इसको जनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं, है ना, जनरेटिव एपोस्पोरी। तो इसमें जो मेगा गैमेटोफाइट है, मेगा गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो आर्किस्पोरियम सेल से होता है। आर्किस्पोरियम सेल का मतलब कि द सेल अराइज मीन्स मतलब सेल होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, मतलब जहाँ से ये जहाँ से मेगा गैमेटोफाइट जिस सेल से ओरिजिनेट हुआ है ना, उन सेल्स को आर्किस्पोरियम सेल्स बोलते हैं, है ना। स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, है ना, बहुत सारी सेल्स है जिसके अंदर फ्लावर के अंदर, उन फ्लावर में विच इज़ द सेल कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस मेगा गैमेटोफाइट, तो उन सेल्स के ग्रुप को हम आर्किस्पोरियम बोलते हैं, ठीक है। तो आर्किस्पोरियम से जब मेगा गैमेटोफाइट बनता है तो उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। और एपोस्पोरी बोलते हैं, एपोस्पोरी को सोमेटिक एपोस्पोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस की सेल्स रोल होता है उनको गैमेटोफाइट बनाने में। मतलब जो एम्ब्रियोसेक का जब स्ट्रक्चर, व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक हुआ, तो देयर इज अ 3 एंटीपोडल सेल एट द टॉप ऑफ द एम्ब्रियोसेक in and then second is 2 nucleolar cell, 2 nucleus is there at the central portion, and at the bottom portion there is a 2 synergetic cell and 1 is egg cell। तो उसमें जो न्यूक्लियस सेल की जो सेल है उस एम्ब्रियो सेल के अंदर, विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट, तो दिस
nucleus cell are participate to produce megagonophyte and term then it's called apospory. नेक्स्ट इज एपोगेमी। तो अब एक सेल के अलावा कोई सी भी सेल हो, मतलब मेगागेमेटोफाइट इज प्रोड्यूस अदर देन दी एक सेल, उसको एपोगेमी बोलते हैं। अब अदर देन एक सेल कौन सी हो सकती है? या तो एंटीपोडल सेल होगी, मतलब एम्ब्रियोसेक में क्या क्या होता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जेटिक सेल, एक सेल और न्यूक्लियस। अब एक सेल को छोड़कर कोई सी भी सेल हो, उनसे यदि कोई मेगागेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एपोगेमी बोलते हैं। और फिर है नेक्स्ट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम दी एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और जब मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक सेल से अब हमारा एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और पार्थिनोकार्पी मीन्स जब उस एम्ब्रियो से जब सीड बन जाएगा तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो ये है सारी। डिप्लोस्पोरी मीन्स आर्किस्पोरियम से बन रहा है, एपोस्पोरी मीन्स न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हो रहा है मेगागेमेटोफाइट, एपोगेमी मीन्स जब अदर देन एक सेल यानी कि सिनर्जिड और एंटीपोडल से ही मेगागेमेटोफाइट बन रहा है, उसको एपोगेमी